The statistics are alarming, but the situation on ground is even more alarming. This as a coronavirus spike is reported from rural Punjab and Haryana. Several villages have been turned into containment zones. There is a rise even in the death toll. India Today has accessed a Haryana government report that links the rise in cases and deaths to farmer protests. The agitating farmers at borders, according to the government, when they return home by rotation, they're bringing more cases of COVID to rural Punjab and Haryana. India Today's Manjeet Sehgal has travelled across the rural belt and has got us this report. 200 days. That's how long the farmers' protest has been raging on. And despite a deadly COVID second wave, the protesters are in no mood to relent. Now, a report accessed exclusively by India Today reveals that the farm stir created COVID hotspots. Kisan Mahapanchayats and Andolans that were held across the states of Punjab and Haryana led to a huge spike in coronavirus cases. Punjab's Bhundar village has been sending a batch of 6 farmers every week to the capital's borders to protest against the 3 farm laws. The village has now been declared a containment zone, with over 138 farmers found to be COVID positive and 6 deaths being reported within a week. There are a dozen such villages including Fapre Bhaika, Joga and Lohgarh that have also been declared containment zones. The story is no different in Haryana. A state government report on COVID infections in villages accessed by India Today found over 804 deaths in 22 Rohtak villages, which are located within 100 kilometers from 3 protest sites. Over 45 villages have been declared containment zones in Haryana. किसानों से अपील की जा रही थी कि आप बॉर्डर्स पर बैठे हैं, वैक्सीनेशन करा लीजिए, हरियाणा सरकार आपकी मदद करे। सब बातें तो हमारी अपनी है प्रदेश की, लेकिन जो केंद्रीय नेताओं से मेरी बातचीत हुई है इस संदर्भ में सारे विषयों की जानकारी उनको दी है और इससे सारी बातों को तो एक प्रकार से अवगत कराया गया उनको और सब धैर्य रख करके हम आगे बढ़ेंगे। 10 Haryana villages have witnessed over 239 mysterious deaths in 2 weeks. These villages are located in Hisar, Rohtak, Sonipat, Bhiwani and Jhajjar districts. जहाँ तक हमारे ज़िले की बात है तो हमारे हुगली एरिया का जो बुराई एरिया है इसमें भी केसेस बढ़े हैं और बाकी जो हमारा गन्नौर और कोहना का एरिया था इनमें भी केसेस थे। वैक्सीनेशन वहाँ पे स्टार्ट की गई है तो अभी 2200 के आसपास वहाँ पे वैक्सीनेशन तो कराई। जहाँ कहीं भी मिक्सिंग है वहाँ डेफिनेटली ये तो है कि वहाँ केसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। At the Tikri border, 2 protesters have already died due to COVID-19. Bharatiya Kisan Union Chief Jogendra Singh Ugrahan himself tested positive in March. Several protesters are symptomatic but are refusing to get tested. डेड बॉडी आई थी बलबीर सिंह सन ऑफ मक्खन सिंह, कुंडली फार्मा एजुकेशन साइट से आई थी, कल रात को आई थी। पुलिस की रिक्वेस्ट थी कि उसका कोविड-19 टेस्ट किया जाए तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में बॉडी पॉजिटिव आई है। हमारे 400 के करीब किसान उनकी डेथ हो चुकी है, सभी का आज तक पोस्टमार्टम हुआ है, किसी का कोरोना पॉजिटिव नहीं आया और अब सरकार का एक षड्यंत्र है, सरकार की एक चाल है, किसान को बुखार हुआ ही नहीं तो पुलिस क्यों लिख रही है कि इसको बुखार है 2 दिन से और जानबूझकर ये लिखने के बाद जहाँ पे उसका मतलब कोविड टेस्ट करवाया, जानबूझकर उसका कोविड को पॉजिटिव की रिपोर्ट दी गई सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के लिए। Besides the crowds at the Delhi border protest sites, over 15 major Kisan rallies, Mahapanchayats and political rallies also contributed to COVID surge. Protesters and farm union leaders fear that the stir will lose its steam if it's called off. But can it continue at the cost of rising infections and deaths due to coronavirus? With Manjeet Sehgal, Bureau Report, India Today. So some of the farmer union leaders that India Today spoke to insist the protests will go on. They say that this coronavirus is a bogey. The government is trying to malign the movement. In fact, some have written to Prime Minister Narendra Modi seeking resumption of dialogue with the centre. Joining me on the show, Rakesh Tiket, farmer union leader, Aprajita Sarangi, Member of Parliament and leader of the Bharatiya Janata Party, Dr. Harsh Mahajan, founder of Mahajan Imaging, and Chaudhry Savit Malik,
national president of the Kisan Union. Also with me is Manjeet Singh Negi. Manjeet Sehgal, my colleague. But first, राकेश टिकैत, आंकड़े देखिए, इतनी ज्यादा संख्या में किसान परिवारों की जानें जा रही हैं, गांवों में कोरोना पहुंच रहा है। आखिर क्यों कोरोना काल के बीचों बीच यह आंदोलन जारी रहे? ये अभी बीमारी क्यों जारी है? जो कोरोना कह रही है अभी क्यों जारी है? ये पिछले साल भी थी जी। अगर कोरोना काल में देश में कानून आ सकते हैं तो कोरोना काल में देश से कानून हट भी सकते हैं। अभी क्यों जारी ना हो? अभी लोग खेती नहीं कर रहे, नौकरी नहीं कर रहे, गाड़ियां नहीं चल रही, ऑफिस नहीं चल रहे, खाना नहीं खा रहे, हम खेत में काम नहीं कर रहे, तो आंदोलन अभी क्यों जारी ना रहे? ये बताओ। ठीक, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग खाना खा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो तो मजबूरी है। क्या ये आंदोलन चलना इस समय मजबूरी है? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि किसान और उनके परिवार कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गांवों में जो लोग आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, फिर गांव जा रहे हैं, उनसे कोरोना गांवों में फैल रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। तो क्या आंदोलन जरूरी है या जान बचाना जरूरी है? नहीं, हम पोस्टपोन करके यहाँ से गांव में जाएंगे, देश से तो बाहर कहीं जा नहीं रहे। हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे कि वहां कोरोना नहीं है, हम वहां से वहां जा रहे, देश में ही तो रहेंगे ना यहाँ पे। या ये कॉलोनी खाली नहीं हो जाएगी? सब पूरा देश खाली तो नहीं होगा? ये किस्म से गांव हैं, ये किस्म से कॉलोनियां हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना का उद्गम स्थानीय आंदोलन है, वो नहीं है। ये एलिगेशन लगाने बंद करे सरकार। ठीक, इससे ना किसान हताश होगा और ना किसान आंदोलन स्थल छोड़कर जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोरोना किसान आंदोलन को छोड़ देगा, लेकिन प्रश्न जो ये उठ रहा है वो ये है कि इस समय क्या आंदोलन आवश्यक है जब सुप्रीम कोर्ट तक ने कानून को स्थगित कर दिया है? कोरोना कम हो जाए, अगर आप सरकार से प्रसन्न नहीं है तो फिर आंदोलन कर लीजिए, जान है जहान है। नहीं, कहीं रोक नहीं लगा रखी, सब हो गया। मंडियां बंद होगी हरियाणा की, सीधा उनके गोदामों में जा रहा है अनाज। क्या बुरा हाल देश का हुआ है वो सबको पता है। अभी तो क्या हुआ, आने वाले जो दूसरी फसलें होगी उसका क्या हाल होगा? ये कानून खत्म ही करने पड़ेंगे, कानूनों को वापसी ही लेना पड़ेगा। देखिए, अगर आप किसानों की बात करें तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलनकारी हैं वो दिल्ली आते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते यहां रहते हैं, फिर रोटेशन पर, यानी 2 हफ्ते 3 हफ्ते यहां रहने के बाद फिर जब वो अपने गांवों में लौटते हैं तो ऐसे कोरोना के मामले बढ़ते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब 2 लोग मिलेंगे ही नहीं तो कोरोना फैलेगा ही नहीं। किसान भले ही स्वस्थ हो इस समय, लेकिन जो घर पे बड़े बूढ़े हैं उन पर बुरा असर हो रहा है, वहां बीमारी फैल रही है। नहीं, यहां से कोई जोखिम में नहीं डालने जा रहे। ठीक है, बीमार हैं, बीमार पूरे देश भर में। यहाँ पे पत्रकार जिनकी डेथ हुई है, मंत्री जिनके डेथ हुई है, वे तो यहाँ पे शामिल नहीं हुए ना। हमने उनको देखा कि वे यहाँ पे शामिल हुए हैं, और यहाँ पे तो किसी की डेथ हुई नहीं है कि यहाँ पे कोरोना है और यहाँ पे हो रही है। वे गांवों में हो रही है, एक बीमारी है, उसका इलाज हॉस्पिटल में होना चाहिए। हमको हॉस्पिटलों पे काम करना चाहिए। जो हमारे गांव में हॉस्पिटलों की बिल्डिंग बन रही है उस पर काम करना चाहिए, डॉक्टरों पर काम करना चाहिए, दवाइयों के ऊपर काम करना चाहिए। आंदोलन को बहाना ना बनावे, अपनी कमियों को छुपाने के लिए आंदोलन को बहाना ना बनावे कि कोरोना के बहाने ही आप इसको आंदोलन को खत्म कर दो, देश के व्यापारियों को लाभ आंदोलन के माध्यम से ही दुआ दो, तो वो तो देश में नहीं होगा। देश की जनता सब जानती है। नहीं, जनता तो सब जानती है, जनता ही परेशान भी हो रही है इस समय, और उसमें परिवार सबके शामिल हैं। लेकिन आरोप यह लग रहा है कि जो बड़े बड़े किसान नेता हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता हैं, वो तो अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन किसान और उनके परिवार सुरक्षित नहीं है। खासतौर पर अब कोरोना की बीमारी तेजी से गांवों में अपने पैर पसार रही है, और ये बहुत बड़ा खतरा है न केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि और भागों के लिए भी। ज्यादा लोग नहीं आ रहे और ना यहाँ पे दिक्कत है।
और किसी को दिक्कत होगी तो अस्पताल जाएगा ना। बीमारी का इलाज हॉस्पिटल है, आंदोलन का इलाज पार्लियामेंट है, तो दोनों के रास्ते अलग अलग है। चलिए, आप कह रहे हैं आपका आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत जी, देश का गौरव, इस समय फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन इंडिया फर्स्ट, मेनी थैंक्स। I now want to bring in Aparajita Sarangi. Aparajita Sarangi, farmers say they've written to Prime Minister Narendra Modi saying time to take back the laws. Will the government rethink on these laws? Will the government take back these laws in the pandemic? Because these farmers say their agitation will continue. A very good evening. The entire nation is today dumbfounded listening to the words of the spokesperson of the Bharatiya Kisan Union, Shri Tikait. How unreasonable this is, how irrational this is, and how silly the behavior is. We are passing through an unprecedented phase, and life is always more important than livelihood. Life will never wait. Livelihood can wait for a while. And we are aware of the fact that, there is a surge of cases in the rural areas of Punjab and Haryana. Reports are coming to us every day. The positivity rate in Punjab is around 14.27%, and that of Haryana is around 11%. This is very high when we compare it with Delhi, which is less than 5% today. So I think when the situation is such, the likes of Tikait must call off the stir. They are not jeopardizing their lives. They are also adversely affecting the lives of others. So I think if they have some degree of shame, I think they would call off the stir. And let us recall. Okay, that, let's take this step by step. You're saying अगर थोड़ी भी शर्म है, सवित मलिक जी, अगर थोड़ी भी शर्म है, तो किसान नेताओं को अब ये आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छा, आप कह रही है कि बंद ही कर देना चाहिए, इस समय आंदोलन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान जा रही है, लोगों की, परिवारों की। अगर आप बुंडर एक गांव है मुक्तसर में, उसी का उदाहरण लें, तो कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ा, 6 लोगों की वहां मृत्यु हुई। जब टेस्ट हुए वहां पर तो 138 लोग उस पर पॉजिटिव आए। तो यह कैसी हठधर्मी है कि आंदोलन फिर भी चलेगा? गौरव जी, जो ये बोल रही थी ज्यादा समझ में मेरा नहीं आया। इनका कहने का उद्देश्य ये था कि जिसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है उसको अपने को विड्रॉ कर लेना चाहिए, यही है ना मतलब? तो इस पूरे देश में जो कोरोना फैल रहा है वो सरकार की वजह से फैल रहा है। इनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब इनके बस की काम करना नहीं है, दूसरे के कंधे में रखकर बंदूक क्यों चलाते हैं? अरे जब आप लोग हॉस्पिटल नहीं बना पाए, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करवा पा रहे, ताली और थाली बजवा रहे थे, मोमबत्ती जलवा रहे थे, तब वेंटिलेटर खरीद लेते। अगर आप लोगों को इतना ही शौक है तो इस्तीफा देकर अपने घर बैठ जाइए। आप जो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है उसको बदनाम करने में आप लोग नहीं मैं राजनीतिक तूतू में के पक्ष में नहीं हूँ। इस समय प्रयास यही है कि काम चले जाए, कहाँ कोरोना नहीं है। हमें जाने बचानी है, उत्तर दे रही है, हमें देश को बचाना है, जाने बचानी है। मुझे बोलने दे। अगर इतनी ही चिंता है तो आप तत्काल लोकसभा राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाइए और एमएसपी पर कानून बनाइए और ये तीनों बिल कहिए कि मिल बैठ कर बनाएंगे बाद में, तो किसान की जान बचेगी, किसान घर चला जाएगा। अच्छा, वो उत्तर देना चाहती है, किसानों के ऊपर फोड़ रहे हो। ठीक, वो उत्तर दे रही है। आपकी सरकार सवित मलिक जी, आपने अपना पक्ष रखा, अब उत्तर सुनिए जी। देखिए, ऐसा है कि ये हठ धर्मिता है। अगर आपको आंदोलन करना है तो किसानों ने आज भी लेटर लिखा है। सवित मलिक जी, आपने अपना पक्ष रखा, अब आप सुन लीजिए। अभी कुछ दिन आप आंदोलन, सवित मलिक जी का ऑडियो डाउन कीजिए। आपने अपना पक्ष रखा, आपका पक्ष सुना गया, अब दूसरा पक्ष सुनिए जी। अपराजिता सारंगी जी। मलिक साहब और जितने भी किसान यूनियन के प्रतिनिधिगण सुन रहे हैं, मैं सबको कहना चाहती हूं कि अगर आपको आंदोलन करना है तो आप आंदोलन करें, जरूर करें, निश्चित तौर पर करें, लेकिन जब स्थिति सामान्य हो जाए तब करें। अभी कोरोना की वजह से देश में और विश्व में स्थिति असामान्य है, जाने जा रही हैं, और आप सब जानते हैं क्या स्थिति हमारे देश की है। तो मुझे लगता है कि आप सबका दायित्व है, आप सबका कर्तव्य है दूसरों के प्रति भी
आप अपनी जहान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है दूसरों की जानों के बारे में भी सोचें। Dr. Mahajan, is this tenable? Dr. Mahajan, ma'am, you've made that point. Ma'am, you've made that point. Dr. Mahajan, is this tenable? A link between farmers following a rotation policy. So from Punjab and Haryana villages, they come to Delhi, they protest, and then they go back by rotation. And when they go back from Singhu and Tikri borders, according to local reports, they're perhaps taking the virus to the rural belt of Punjab and Haryana. Is this tenable, Dr. Mahajan? It is tenable, गौरव, और मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। ये तो हो ही सकता है। हम देख रहे हैं यहीं पे नहीं, किसानों में ही नहीं, जहाँ भी इकट्ठे लोग होंगे, और फोटो अगर आप जो दिखा रहे थे अगर वो अभी की हैं, तो वहाँ किसी ने मास्क भी नहीं डाला हुआ। और ऐसे अगर लोग मिल रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मार्केट में मिले, चाहे वो किसी रैली में मिले, तो एक से दूसरे में फैलेगा। और जहां तक पहला वेव था और ये वेव आया है, इसमें फर्क है। पहले वेव में जो वायरस था वो वुहान वाला वायरस था। इस वेव में जो पंजाब में फैला है वो यूके वाला वायरस है। हो सकता है जो महाराष्ट्र में पाया गया वो वायरस भी यहाँ पे है। तो ये ज्यादा इन्फेक्शियस है। इनकी जो इन्फेक्शियसनेस है वो जो पहला पिछले साल वाला वायरस था उससे 70-80% अधिक है। तो जहां पे लोग मिलेंगे और फिर अगर घर वापस जाएंगे, जैसे ये जत्था बना के आए, यहाँ रुके 1 हफ्ता 2 हफ्ते और फिर वापस गए, तो और ये भी हम जानते हैं कि जो संक्रमण है उससे कोई 60-70% को तो पता भी नहीं होता, किसी तरह का सिम्टम नहीं होता, कोई जुकाम नहीं, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं, एसिम्प्टोमेटिक जिसको कहते हैं वो होते हैं। तो ऐसे लोग वापस जाएंगे तो उनमें क्षमता है, अगर वो इन्फेक्टेड हैं, कि वो इस बीमारी को फैला सकें। उन्हें पता नहीं है कि वो बीमार है, तो अपने गांव जाएंगे या शहर जाएंगे, जहां भी वापस जाएंगे वो वहां फैला सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो तो जवान है वो फिर भी झेल रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं इस सेकंड वेव में जवानों की मौत भी हो रही है, पर जो वृद्ध हैं घर के अंदर उनका ज्यादा चांस है अगर उन्हें कोरोना हो गया। ठीक, Manjeet, you visited villages on ground in Punjab and Haryana. Manjeet, you've reported from ground zero. Is there a link or is this an effort to malign the agitation? What are you seeing on ground in villages, whether it's the Malwa belt or villages around Rohtak in Haryana? Well, Gaurav, for the benefit of our viewers, I want to bring in 2 important facts. One, the people, the protesters who are living close to the protest sites, particularly the villages who are located within 100 kilometers of the protest sites, farmers regularly visit the protest sites and come back to their homes. One. Second, even from various villages in Punjab, the panchayats had issued a dictate that every person from one family should go to New Delhi to stay there for a week to support the agitation. In this way, farmers are coming back to their villages in groups and bringing the infection with them. They are infecting their family members, and the worst hit are the senior citizens. One of the reports released by the PGI Chandigarh today says that 83% of the people who died of COVID-19 had comorbidities in Punjab. Yes. So the farmers who are staying in New Delhi, they may appear healthy, they may fight the virus because of the increased okay, but it's the parents back in villages. Savit Malik ji, and Gaurav, one important study, one important report, one important study done by the Haryana police in 22 villages of Haryana. Yes. 804 people died during past 5 months, and most of them were protesters. They were regularly visiting the protest sites, taking part in the rallies. And in Punjab as well, over 15 major rallies took place in which thousands of people were attracted. They did not wear masks. Savit Malik ji, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी
पार्टी है पंजाब में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो हरियाणा में, लेकिन ये तो आंकड़े हैं, ये तो सच है। और सच ये है कि जब दो लोग मिलते हैं और अगर उचित दूरी न हो तो कोरोना फैलने का डर बढ़ जाता है। तो अगर रैली, तो क्यों किसान इस समय मिले, इस समय जब प्रकोप खत्म हो जाए फिर एजिटेट कर लीजिए। गौरव जी मुझे 1 मिनट देना, मैं आपको बताता हूं। जब पिछले वर्ष हमारे देश में 100 से नीचे केस थे तो हमारी केंद्र सरकार ने पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। डॉक्टर साहब आप भी बताना। और आज जब 4 लाख प्लस केस आ रहे थे तो हमारी सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी थी। वो कहती है प्रदेश की सरकारें देखेंगी, प्रदेश की सरकार कहती है डीएम देखेगा, राजनीति करेंगे अब आप। एसडीएम देखेगा, एसडीएम कहता है पटवारी देखेगा, वो कहता है गांव का चौकीदार देखेगा। अरे आप अपना परिवार बचाओगे कि राजनीति करोगे? ये सरकार की विफलता से इतनी मौतें हुई है। अगर सरकार अपना काम करती तो ये मौतें ना होती। सरकार तो आप राजनीति करोगे, मतलब कोई आदमी कुएं में गिरेगा तो आप भी कुएं में गिरोगे? गौरव जी हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं सरकार की विफलता। जब वो 100 केस पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है तो आज पूरे भारत में कैसे लोग सब घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, कैसे आप राजिता सारंगी सरकार ने समय रहते अच्छा आपने अपना पक्ष रखा, देखिए आपने अपना पक्ष रखा, देश में वैक्सीनेशन कराए होता। उनका पक्ष सुनिए। डॉक्टर साहब आप बताइए ये बात मैं गलत कह रहा क्या? ऐसे तर्कहीन बातों पर क्या कहा जाए? अच्छा हमारी बातें तर्कहीन है, आपकी बातें ठीक है। आप मेरी बात सुने, आप शांत हो जाए तो फिर बोले। पंचायत चुनाव आप ठीक है, न करें। किसान अपना हक मांगे देखिए तो इस तरह के व्यवहार से आप सबकी जाने आपने अपना पक्ष रखा, अब शांतिपूर्वक उनका पक्ष सुनिए। नहीं अगर गलत बात बोलेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। अरे जब आपका समय आएगा जवाब दीजिएगा ना, यहाँ थोड़ी लठ चलाएंगे। आपका जब समय आएगा तो जरूर जवाब दें, मैं सुनने के लिए बैठी हूँ। सुन लिया, लोग अपनी बात रख रहे हैं। आपने रख दिया अपना पक्ष, अब उनका पक्ष सुनिए। मेरी बात रखने दें। सरकार के साथ किसान यूनियंस की 11 बार बातचीत हुई है, 11 दौर, और हमने हर एक बिंदु पर बातचीत की है। आप सबको ज्ञात है, नरेंद्र तोमर जी हमारे कृषि मंत्री ने बार बार आह्वान दिया है कि आप अभी आज की स्थिति में आपने जो स्टर किया हुआ है, आपने जो आंदोलन किया है, इसे बंद करें। और हम अभी भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, किंतु बिंदुवार बातचीत करें। आप प्रस्ताव लेकर आए, बातचीत करें, और हमने 11 बार इस तरह की बातचीत की है। ये जितने तीनों फार्म लॉज हैं ये किसानों के हित में है। और आपने इस बार देखा कि जो गेहूं है इसका जो एमएसपी है ये हमने 10% अधिक दिया है। अभी जो खरीद हुई है ये 10% अधिक दिया है अगर आप इसका पिछले साल से तुलना करें। तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई स्थिति, कोई गड़बड़ नहीं है। और हमारे किसान कैसे लाभान्वित हो, इसी की वजह से और इसी लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए इन तीनों लॉज को हम लाए हैं। तो मुझे लगता है जरा सा खुले मन से इस पर ध्यान दें। और अभी की स्थिति बिल्कुल असामान्य है, इसे मुझे लगता है मैं गुजारिश करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और एक देश के नागरिक होने के नाते, आप अभी जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी जो कांग्रेगेशन कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, ये बिल्कुल बंद कीजिए। Okay, a very pertinent point that has been raised by Savit Malik. बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया है। डॉक्टर महाजन रहेगा तो जहान रहेगा। मैम, yes, मैम, you made that point. Savit Malik जी, आपने एक बड़े पते की बात की है। डॉक्टर महाजन से उसका उत्तर ले लेते हैं। आपने कहा 6 करोड़ वैक्सीन बाहर क्यों भेज दिया? डॉक्टर महाजन, does that argument hold? 6 करोड़ वैक्सीन बाहर क्यों भेज दिया? यहां लगा दिया होता, किसानों को लगा दिया होता तो वो अपना एजिटेशन करते रहते। देखिए गौरव जी, इसमें कहना ये पड़ेगा कि जब ये वैक्सीन बाहर गए, एक तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे सीरम इंस्टीट्यूट के जिसके तहत उन्हें जाना ही था, WHO के थे, दूसरे कंट्रीज के थे, बाकी कुछ बिके भी। शायद वो कुछ कुल मेरे ख्याल कोई 6 करोड़ के करीब बाहर गए, उनमें से शायद 50 लाख होंगे ऐसे जो कि बेचे भी गए। वो ना बेचे जाते तो यहां लग सकते थे। पर आप ये देखें कि तब माहौल देश में ऐसा था कि कोरोना बिल्कुल खत्म था, ऐसे लगता था कि ये खत्म हो गया।
और लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी नहीं आ रहे थे, बहुत कम थे। आप देखिए पहले दिनों में 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसे लग रहे थे, जबकि आज हमें जरूरत है 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ वैक्सीन हर रोज लगे, तब जाके हम वहां पहुंच पाएंगे। तो और क्या इतनी तब क्षमता तक ही नहीं है हमारे पास बनाने की, क्या तब उसको तक रैंप अप किया जा रहा है। जब तक जो चीज जरूरी ना हो हर चीज को स्थगित करने की आवश्यकता है, क्योंकि सवित मलिक जी किसान भी कानून के ऊपर नहीं है। सवित मलिक जी मेरा प्रश्न सुन लीजिए। ओके डॉक्टर साहब, गो अहेड डॉक्टर साहब। एक बात ये कहूंगा कि लॉकडाउन की बात सही है, हुआ है। दिल्ली में तो अभी 5वां हफ्ता चल रहा है लॉकडाउन का, देश भर में हुआ है। पर इस लॉकडाउन के अलावा हमें सेल्फ लॉकडाउन भी करना है, वो दायित्व हमारे पास ही है। वी हैव टू सेल्फ लॉकडाउन एंड सेव आवरसेल्व्स। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें अस्पताल, आप देख रहे हैं अस्पतालों में क्या हालत है, इतने मरीज हैं, तो हमें अपने आप को बचाना है। उसके लिए अगर हम ना मिले कुछ समय के लिए तो वो सबके लिए अच्छा होगा। सही बात है, किसानों के लिए अच्छा है। मतलब ये क्योंकि मेरे को मेरा चेहरा नहीं अच्छा लगता तो मैं अपनी ही नाक काट लूंगा, ये किस तरह की सोच है सवित मलिक जी? क्योंकि किसान भी कानून के ऊपर तो नहीं है। हरियाणा सरकार का यह दावा है कि उन्होंने टेस्टिंग के लिए कैंपों का आयोजन किया। किसान वहां जाके टेस्टिंग ही नहीं कराते। जब टेस्टिंग ही नहीं कराएंगे तो ट्रेसिंग नहीं होगी, इलाज नहीं होगा। फिर जब वही किसान गांव जाएंगे तो भगवान न करे वो कोरोना लेकर जाते और वहां फिर मृत्यु की संख्या बढ़ रही है लोगों की। सवित मलिक जी। गौरव जी, पहले तो सरकार कहती थी कि हम वहां वैक्सीन लगाने गए, किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई। जब हम लोगों ने कहा कि वैक्सीन भी लगी है और वैक्सीन देश में है नहीं, ये लोग लगा नहीं पा रहे, तो अब ये टेस्टिंग की बात करने लगे। अरे हम ये कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे घर में खाना बना है, हमारे बच्चे तो भूखे बैठे हैं और आप विदेशी को बांट रहे हो। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि किसान, ऐसी क्या दिक्कत है इनको किसानों से? अगर इतनी हमदर्दी है तो जो बातें इन्होंने अपने मुंह से कही थी वो बातें क्यों नहीं मान लेते? क्या मजबूरी है इनकी? किन उद्योगपतियों का दबाव है इनके ऊपर? कोरोना काल में ही इन्होंने ऐसा बिल क्यों लेके आए थे ये? अब ऐसा क्या मजबूरी होगी कि जब कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो अब उसको कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाते? अच्छा, और जब कहते हैं तो अगर जान ही नहीं रहेगी तो एमएसपी की लड़ाई कौन करेगा? अगर किसानों की भी, परिवारों की भी अगर मृत्यु हो रही है कोरोना में, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना आंदोलन बंद कर दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि अगर घर पे रहिए, जब कोरोना का ये प्रकोप कम हो जाएगा फिर एजिटेशन जारी कर दीजिए अपना। गौरव जी ये बताइए, 400 प्लस किसान शहीद हो गए, कभी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। नहीं, आवाज तो हम लोग तो प्रश्न तब भी पूछ रहे थे। वो किसान कोरोना से, जिसमें अभी पुष्टि नहीं है कि वो ठीक है कि गलत है, और गांव में तो बहुत सारे आदमी मर रहे। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में देखिए पंचायत चुनाव ने क्या हाल कर दिया है। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, बंगाल में, क्या वहां के आंदोलनकारी यहाँ आ रहे हैं? नहीं, वहां भी गलती हो रही है तो यहाँ भी गलती जारी रहेगी। लेकिन ओके, अपराजिता सारंगी, आप उत्तर दीजिए कि एक, दवाइयां विदेश क्यों भेजी, और दूसरा कि कानून वापस, सरकार या कानून को कोर्ट ने स्थगित किया, सरकार बोलते हम वापस ले लेते हैं तो किसान घर चले जाएंगे। See, there is no question of rollback on the farm laws. This has to be made very clear. I think we are extremely categorically stated earlier, very candidly saying now that we would not be rolling back the farm laws. This is one part. These are pro-farmers and we have already started getting the desired fruits. Okay. As far as the export of the vaccines are concerned, let me tell you, 6 crore 63 lakh vaccines had been sent out. Now, out of this 6.63 crore, 1 crore were sent to about 7 neighboring countries. Now, these neighboring countries, we stand by them all the time. They wanted at that point of time vaccines, and as a matter of goodwill, it was expected of us, and we did our job as a good neighbor. Now, the rest 5 crore vaccines that were sent, this had to be done because it was part of our agreement with a certain sections of
companies and foreign countries. So we साबित had मलिक to जी, send. अब This ये was बात the आपको Global दवाइयों Alliance for पर Vaccine and इंजेक्शन विदेश Immunization. क्यों भेजे गए, ये We were समझ आ also गई? part of it. ये समझ आ गई? हम लोगों ने समझौते पर दस्तखत किया था, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन. नहीं मैडम, हिंदी में बता रही हूँ. नहीं देखिए साबित मलिक जी, हिंदी में कह रही हूँ. कुछ दवाइयां पट्टीदार अब है, तो जब घर में एक ही रोटी होती है और पट्टीदार भूखा हो तो आधी रोटी घर में खा ली, आधी रोटी पट्टीदार को खिला दी, क्या गलत है? अच्छा ये बताइए, जब तो ये लोग ये कह रहे थे, आपकी पार्टी ये कह रही थी पिछले वर्ष जब लगा था, देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमको पता है बहुत खतरनाक बीमारी है, किसान भी अपनी जान बचाना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है. नहीं, लेकिन आंदोलनकारी नेता तो अपने घरों में बैठे हैं, किसान बेचारा मर रहा है. गौरव जी, सरकार की जो दूरदर्शिता है उसमें कमी है. इन्होंने जब पिछले साल लॉकडाउन लगाया था, कितने मजदूर पैदल जाते हुए घर मर गए थे. अरे उन मुद्दों पर आप अपनी जान आज क्यों जोखिम में डाल रहे हैं? ये बताइए, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं आज की डेट में? देखो सरकार अभी आप लोगों की जानों को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? सीधी सी बात है मलिक साहब, आप लोगों की जानों को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? आपको ये नहीं अगर पता आप बचेंगे, अगर आपकी जानें रहेंगी तो जीविका की बात करेंगे आप. ये बात सोचिए, कंटेजियस डिजीज है, संक्रमण फैलता है, हालत बड़ी खराब है हमारे देश की. इस स्थिति में हमें इस आप लोगों को परिस्थिति में एक साथ खड़ा होना है और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. हम सब मिलकर खड़े होंगे तभी इस युद्ध में जीत पाएंगे. Is this in your view acceptable that government claims it organized a testing camp and farmers refuse to get tested? Will this not lead to a bigger problem? Dr. Mahajan. See, I think testing, if it is being offered, it should be taken up by whosoever it may be, farmers or anyone else, because that's the only way that we can actually find out the positives and then trace, isolate and treat. That's the only way. Otherwise, the disease will keep spreading and one person can spread the disease to so many. So अगर टेस्ट गवर्नमेंट कह रही है कि टेस्ट कराइए, तो टेस्ट करा लेने चाहिए, चाहे एजिटेशन जैसा भी रहे. मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर अगर टेस्ट गवर्नमेंट चाह रही है कि करें तो वो कराने चाहिए, करा लेने चाहिए. और ये भी कोई गलत रिपोर्ट नहीं आती है. अगर पॉजिटिव आता है तो वो गलत रिपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव सैंपल प्रिजर्व्ड रहते हैं. अगर हम चाहें तो उसको दोबारा टेस्ट करके भी प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव था या नहीं था. नेगेटिव फिर भी फॉल्स हो सकता है, पॉजिटिव 99% सही होता है. आपकी बात डॉक्टर साहब सही है, लेकिन इस सरकार से किसानों का विश्वास उठ चुका है. बहुत बार किसान धोखा खा चुका है. इन्होंने कहा था आपकी आय दुगनी करेंगे, उसके नाम पर धोखा हुआ. इन्होंने कहा था हमने अभी, मुझे बोलने दे, धोखा हुआ. और तो आप लोग राजनीति करते रहेंगे चाहे जान चली जाए. अब बड़े बूढ़ों की राजनीति ना करें, अभी राजनीति का समय नहीं है. मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, का समय नहीं है. मुझे साबित मलिक जी ये नहीं समझ आ रहा है इस समय कि जब बड़े बूढ़े, जब उनकी मृत्यु होगी, जब हो रही है, अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं, तब भी किसान बोल रहे हैं हम आंदोलन तो फिर भी करेंगे. ये क्या तुक है? ये तुक नहीं समझ आ रहा. गौरव सावंत जी ये बताइए, वहां पर कोई केस ही नहीं निकला है और दिल्ली में कितने लोग तड़प तड़प के सड़कों पर मर रहे हैं. पहले उनको बचा लो, किसानों के पीछे क्यों ना धोकर पड़े हो? ये किसान आंदोलन पर 13वां अटैक है. 13 बार साजिश की जा चुकी है अभी तक. कभी कहते हैं नक्सली है, कभी कहते हैं खालिस्तानी है, कभी कहते हैं पाकिस्तानी है. गुजारिश करूंगी साबित मलिक जी, थोड़ा सा सोचें इस पर. Manjeet Sehgal, you're on ground zero. Is the situation equally bad in Haryana and Punjab? I'm told Ugraha Group, this BKU Ugraha Group, some leaders have also tested positive. Is the government able to check the spike in rural areas? Well, Gaurav, I want to tell that 2 people have already died at Tikri border. On 30th of April, the West Bengal lady activist who was sexually assaulted by 2 of the farmer union leaders, she died of COVID-19. And on Tuesday, a 50-year-old farmer who belonged to Patiala also died of COVID. And Bharatiya Kisan Union
Ekta Ugraha chief Joginder Singh Ugraha had also tested positive during March this year. So farmer leaders should also consider these facts and should not hide that corona virus is already present among the protesters and at the 3 protesting sites. And as far as the testing in Punjab and Haryana is concerned, governments are making efforts, but the farmers are and the people in particularly in rural areas are not coming forward for testing. They are considering COVID-19 infection as a normal fever and cold. That is why more people are dying. And when their oxygen level dips, they are referred to the hospitals. So they have complications. So this is the ground reality. I sincerely hope that the government reaches out to the farmers in rural belts and actually explains it to them. It's in their interest. It's in the country's interest. To all my guests, many thanks for joining me here on India Today. Sincerely hope better sense prevails on all sides. A quick break. On the other side, Prime Minister Narendra